Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I don't know about you, your life. But tell me 'cause we still have time. I can't stop looking at you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop looking at you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. There's nobody else. Tails is the call from Swapnil Alve and Tails it is. Well, Swapnil आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहो? पहले फील्डिंग करना चाहिए। पिचिंग करने के बाद पहले fielding करना चाहिए। Just one night. I don't know about you. काफी नमी भी है पिच पर, आप उसका एडवांटेज लेना चाहोगे तो किस हद तक उन्हें रोकना चाहोगे? क्योंकि एक बड़ी क्वालिफायर है, फर्स्ट क्वालिफायर। आप जानते हैं कि एक अगर ये मैच जीते तो स्ट्रेट ऑफ फाइनल में जाते हो। सर 140-150 तक रोकना चाहेंगे सर। चेंज आपकी टीम में पिछली टीम से कोई चेंज नहीं है सर, एज अ सेम टीम ही खेल रहे सर। और ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। एक बड़ी क्वालिफायर मैच है, आप जिस तरह से जीते आए हैं वही मोमेंटम कंटिन्यू रखिए। अगर आप जीते हैं तो आप एक बड़ी फाइनल के लिए अपना पैर जमा दोगे। कंग्रेचुलेशंस फॉर द टॉस फर्स्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। थैंक यू सर। थैंक यू। राइट, वेल अभिषेक, आप क्या करते हैं अगर आप टॉस जीते? मैं भी फील्डिंग ही करता, जैसे पिच का देखा जाए तो फील्डिंग ही बेहतर है पर। एंड टू टेल यू दैट अभी आप पहले बैटिंग करना चाहते हो तो किस हद तक आप कितने रन बनाना चाहते हो बोर्ड पर? 150 के अबो करना चाहेंगे सर, क्योंकि वही एक अच्छा डिपेंड करने के लिए स्कोर अच्छा रहेगा सर वो। और कोई तब्दीली है, चेंज है आपके पिछले गेम से इस गेम पे? हाँ, 2 चेंजेस है सर, सुजय और हबीब आउट है और राहुल और रोहित पटेल इन है सर। और आप जानते हैं कि एक बड़ी क्वालिफायर है, फर्स्ट क्वालिफायर मैच आप खेल रहे हैं। अगर ये मैच आप जीते हो, क्योंकि आपका जो जीतने का मोमेंटम जारी है, अगर आप ये जीते हो तो स्ट्रेट वे फाइनल में प्रवेश कर सकते हो। हाँ सर, ज़रूर, ये जीतेंगे तो फाइनल ही प्रवेश करेंगे सर डायरेक्ट। लेकिन फिर भी आपको भी और हुबली स्पोर्ट्स, अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए भी एक मौका रहेगा। जो भी इसमें भी अगर हार जाएंगे तो एक मौका और मिलेगा कि आप दोबारा सेकंड क्वालिफायर भी खेल सकते हो। आप जानते हो तो आप आराम से खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमें भी एंटरटेन कीजिए। हाँ ज़रूर सर, करेंगे सर। ऑल द बेस्ट। टॉस तो हार गए, मैच जीतने की पूरी कोशिश कीजिए, एक बहुत मनोरंजन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। थैंक यू सर। Thank you. Well, the news from the center is that Swapnil Alve, the captain of Arjun Sports Hubli Tigers, has won the toss and is elected to ball first.
street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Come in just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Board on the scorecard reading 1 for 1. That one wicket to go down was of Deepak Rakshay. Just goes back without the tickling the scorers. There was a different plan today by Sairaj, just sending him up the order to try and push up the accelerator. But the wicket goes down. And at the fall of Deepak Rakshay, it is Kishan Meghraj who walks onto the crease.
as the batsman crossed, it is Sudhwana Kulkarni. Just was at the strike, and that gets Kishan on the strike now. With that, another single taken the scorecard for that ticks along to 2 runs. We've got 5 deliveries up now, and in the first over, Anand Konur begins from very left over. To tell you, this is the first qualifier that is played here at the second edition of the KR Shetty T20 tournament. 2 good teams positioned at number 1 and number 2, Sairaj Warriors and Arjun Sports Hubli Tigers. This morning, to tell you that onto the back foot and trying to play a straight one there. Ball just slightly keeping lower for another dot ball. With that dot ball, it also completes the over. So after the completion of 1 over, scorecard reading 2 runs. And the 2 batsmen out there in the middle are Kishan Meghraj and Sudhanva Kulkarni. धन्यवाद चेतन। 1 विकेट के नुकसान पर साईराज वॉरियर्स का स्कोर बना है 3। दीपक राक्षे आउट हुए खाता खोले बगैर। इस बार ड्राइव किया, कोई मौका नहीं उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। दंदनाता हुआ चौका, किशन मेघराज के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद को डाल रहे थे और हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को करारे तरीके से ड्राइव किया। बल्ले के बीचों बीच गेंद मिली और ये दंदनाता हुआ चौका स्कोर को आगे बढ़ा रहा है 7 रन। 1 विकेट खो रही है दीपक राक्षे का साईराज वॉरियर्स की टीम। खाता खोल रहे हैं किशन मेघराज 4 रन बनाकर और सुधर्मा कुलकर्णी खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। फरहान पाटिल
एक और दंदनाता हुआ ड्राइव, लेकिन इस बार फील्डर पाए गए हैं मिड ऑफ के इलाके में और मिड ऑफ पर कप्तान स्वप्निल येलवे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। ये भी थोड़ी सी ओवर पिच गेंद को डाल रहे थे, तकरीबन वो स्लॉट में गेंद को डाल रहे थे। मेघराज ने अच्छी टाइमिंग तो जरूर बनाई, लेकिन दरार नहीं पैदा कर पाए, गैप में नहीं खेल पाए। मिड ऑफ के ऊपर गेंद फील्ड होने के बाद कोई रन नहीं बना। अच्छी वापसी फरहान पाटिल की, एक चौका खाने के बाद एक डॉट गेंद कराते हुए किशन मेघराज को। अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने टॉस जीता और आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए साईराज वॉरियर्स के। इस बार भी ड्राइव, इस बार थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ पर स्वप्निल येलवे खड़े हैं, मिड ऑफ पर थे इससे पहले, लेकिन जिस ढंग से वो ड्राइव कर रहे थे वो देखने के बाद थोड़ा पीछे जाकर खड़े थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक की गेंद को स्वप्निल येलवे फील्ड करते हैं, एक रन के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है फरहान पाटिल का। और इस एक रन की मदद से अब ओवर समाप्त हुए हैं 2 और 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 8 रन बन रहे हैं इस वक्त साईराज वॉरियर्स के लिए। दीपक राक्षे को आज बढ़त देकर भेजा था ऊपर कुछ आक्रमण करने के लिए, लेकिन आज कोई खास प्रदर्शन नहीं हुआ उनका और बहुत जल्दी वो वापस लौटे पवेलियन में। दूसरी गेंद वो खेल रहे थे और विकेट खोकर वापस लौटने के बाद अब ये भरोसेमंद जोड़ी मैदान पर है साईराज वॉरियर्स की तरफ से, सुधर्मा और किशन मेघराज। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आनंद कोनूर, जिन्होंने पहली ओवर में एक झटका दिया था साईराज वॉरियर्स की टीम को। KR रत्नाकर शेट्टी T20 में आज का ये पहला क्वालिफायर का मैच चलता हुआ। कुन्नूर की गेंद, इस बार ड्राइव किया, दमदार ड्राइव था, लेकिन फिर एक बार उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में फील्डर के पास गेंद जा रही है। रन की भी वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक 5 खिलाड़ी उस घेरे के अंदर खड़े हैं। ओ ये भी स्लॉट में डाल रहे थे गेंद, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे हैं। मलतवाड़कर खड़े एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 2 डॉट गेंदे आनंद कोनूर अब तक कर चुके हैं किशन मेघराज को। इस बार छकाने में कामयाब जरूर हुए, 4 रन तो जरूर बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे ये हम देखेंगे। जी हाँ, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है और फाइन लेग के ऊपर गेंद गई है 4 रन के लिए। हल्का सा किनारा लिया था गेंद ने बल्ले का और विकेट कीपर को छका कर गेंद गई और ये चौका बनता हुआ किशन मेघराज के लिए। दूसरा चौका उनके खाते में। उनका व्यक्तिगत स्कोर है अब 9। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 12 एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ के बाहर थी गेंद, थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी तेज, छट से गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने, गिल्लियों को बिखार दिया, लेकिन सही सलामत मौजूद थे अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर किशन मेघराज। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन नहीं बना, लेकिन डॉट गेंद। फिर एक बार ऑफ के बाहर थी, अच्छी एंगल, अच्छी कोण बनाकर गेंद को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं आनंद कोनूर। चौका लगने के बाद 2 बार बीट कराने में कामयाब हुए हैं किशन मेघराज को आनंद कोनूर। बड़ी किफायती गेंदबाजी मैं कहूँगा पावर प्ले के दरमियान स्पिनर्स करते हुए। स्लॉट में गेंद को डाला, इस बार ऑन साइड पर ड्राइव किया, लेकिन सीधे मिड ऑन के इलाके में फील्डर तैनात। स्वप्निल येलवे ने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। एक अच्छा ओवर की समाप्ति हो रही है, 4 ही रन आए इस ओवर में, तो बाकी के 5 गेंदे आनंद कोनूर डॉट कराने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 3 और 3 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद साईराज वॉरियर्स 12 रन बना रही है और 1 विकेट दीपक राक्षे का खो रही है। 6 ओवर का जो मैंडेटरी पावर प्ले है, इसमें 2 ही खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे। इस बीच दूर वाले छोर से फरहान पाटिल।
ओ क्या बढ़िया गेंद थी, जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेन गेंद, अच्छी उछाल, अच्छी टर्न लेकर गेंद जा रही थी। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के लिए बल्ला आगे बढ़ाया जरूर था सुधर्मा कुलकर्णी ने, लेकिन छकाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर वैष्णव के दस्तानों में बगैर किसी रन के। बहुत बढ़िया गेंद थी और सुधर्मा जैसे बैट्समैन को चारों खान निश्चित करने में फरहान पटेल कामयाब। वन साइड पर एक वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी हैं। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। उस कवच के इलाके में नंद कुमार मलतवाड़कर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। रन की तमाम संभावनाओं को खत्म करने के बाद गेंद वापस लौट रही है फरहान पाटिल के पास। एक स्वीपर कवर बाउंड्री और एक वाइडिश मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी हैं, तो ये दो ही खिलाड़ी हैं 30 गज दायरे के बाहर इस पावर प्ले के दरम्यान। लेकिन अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक। इस चौथे ओवर तक हवा में गेंद को खेला, लेकिन पॉइंट और गली के बीच में से गेंद निकल गई। 4 रन बनेंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। गेंद हवा में जरूर थी, इस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे थे सुधर्मा कुलकर्णी। पॉइंट और गली के दरमियान 2 खिलाड़ी जरूर रखे गए हैं, लेकिन उनके बीच में गेंद गिरी और उसके बाद गई 4 रन के लिए। ये चौका सुधर्मा के खाते में जाता हुआ, ये पहला चौका है सुधर्मा के लिए। सुधर्मा कुलकर्णी जा पहुंचे 7 पर। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 16। 1 विकेट खोने के बाद साईराज वॉरियर्स फिर एक बार फरहान पाटिल तैयार होते हुए और इनसाइड एज लेकर गेंद स्टंप्स के ऊपर से गई है। वैष्णव संगमित्रा है, उन्होंने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। 16 पर 1 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। ये पहला क्वालिफायर मैच, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को जरूर एक मौका मिलेगा कल के मैच में खेलने का। हाँ, आगे बढ़कर हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को खेला उन्होंने स्वीपर कवर की दिशा में। फील्डर मौजूद, गेंद को रोक रहे हैं, लेकिन 1 रन सुधर्मा के खाते में जाता हुआ। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 17। दाएं बाई की जोड़ी मैदान पर है, तो ये अच्छा खासा परेशानी का समय तो जरूर रहेगा फील्डर्स के लिए, गेंदबाजों के लिए। लगातार अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, उनको जगह बदलनी पड़ेगी फील्डिंग के लिए। जब दाहिने हाथ के बल्लेबाज आएंगे, जब बाएं हाथ के बल्लेबाज आएंगे तब। और बॉलर्स को भी अपने दिशा पर नियंत्रण रखकर गेंदबाजी करनी है, सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी करनी है। अच्छी गेंद सीध में डाल रहे थे इस मरतबा। हाथ खोलकर खेलने का किशन मेघराज को कोई मौका नहीं दे रहे हैं फरहान पाटिल। बहुत बढ़िया गेंद और ये ओवर अब समाप्त हुआ। तो 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर साईराज वॉरियर्स 17 रन बना रही है। सुधर्मा 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। और किशन मेघराज 13 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, आनंद कोडनूर 2 ओवर कोई मेडन ने 6 रन 1 विकेट, और फरहान पाटिल 2 ओवर कोई मेडन ने 11 रन और उनको कोई अब तक सफलता नहीं मिली। तो ये रहा स्कोर कार्ड पहले 4 ओवर के खेल के समाप्ति तक। लेकिन ये मैच बड़ा अच्छा होगा निश्चित। दोनों टीम्स के खिलाड़ी बड़े तगड़े हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू खिलाड़ी हैं, और वो अहमियत जानते हैं इस मैच की कि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। लेकिन हारने वाली टीम के पास भी एक मौका ज़रूर है, कल सेकेंड क्वालिफायर में मौका मिलेगा उनको खेलने के लिए। लेकिन जीतने की पूरी कोशिश दोनों टीम्स करेंगी आज, क्योंकि एक और मैच का जोखिम नहीं उठाना चाह रही है कोई भी टीम। एक मैच जीतकर सीधे फाइनल में जाकर अपने स्थान सुनिश्चित करना, ये दोनों टीम की तरफ से सोच रहेगी आज के दिन, आज के इस मैच में। फिलहाल आनंद कोडनूर फिर एक बार तैयार हो रहे हैं बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए। पेवलियन एंड छोर से पंच किया उस गेंद को मिड ऑन के इलाके में। संतोष के पाटिल लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं, वो जब तक कि 30 गज दायरे के ऊपर आकर गेंद को फील्ड करते हैं 1 रन का इजाफा होता हुआ सुधर्मा के खाते में। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बनी है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
18 for 1. बैकफुट पर गए, ड्राइव तो करना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद सीधी आई बॉलर की दिशा में, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन ठीक तरीके से नहीं बना पाए किशन मेघराज। इस बार उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन, कोई मौका नहीं। ये फ्लाइटेड गेंद डाल रहे थे, हवा दे रहे थे गेंद को, और जैसे हवा में गेंद आई, इस गेंद को उन्होंने सीधे बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला। ये चौका किशन मेघराज को मिलता हुआ। अब 22 पर जा पहुंचा स्कोर साईराज वॉरियर्स की टीम का। किशन मेघराज अब जा पहुंचे 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ये तीसरा चौका उनके खाते में शामिल। इस बीच के बाहर थी गेंद, थोड़ी तेज थोड़ी नीची, जगह बनाकर कट करना चाहा, लेकिन बीट हुए। वैष्णव संगमित्रा ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। अच्छी वापस से डॉट गेंद। फिर एक बार ऑन ड्राइव खिलाए मिड ऑन के इलाके में, रन चुराने में कामयाब। स्वप्निल रेलवे जरूर मिड ऑन पर खड़े हैं, साफ सुथरी फील्डिंग तो नहीं की उन्होंने, और जैसे ही देखा कि 1 रन बनेगा, अच्छी तालमेल के साथ 1 रन मेघराज ने दौड़कर पूरा किया। मेघराज अब जा पहुंचे 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पारी की रन संख्या 23, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 पर जा पहुंचे किशन मेघराज। 9 रन बनाकर खेल रहे सुधर्मा कुलकर्णी अब सामना करेंगे आनंद कोनूर का। बैकफुट पर गया, अच्छा सा ड्राइव, लेकिन मलतवाड़कर जब तक के एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद को फील्ड करते हैं, 1 रन चुराने में कामयाब सुधर्मा। अच्छी तालमेल भरा ये रन था, और इस 1 रन के साथ 2 अंक में प्रवेश कर चुके हैं सुधनवा। जा पहुंचे 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 24 रन बना रही है साईराज वॉरियर्स की टीम। 1 विकेट अब तक खोया है दीपक राक्षे के रूप में। खाता नहीं खोल रहे थे दीपक राक्षे, और आनंद कोनूर का वो शिकार बने। संतोष पाटिल ने उनका कैच लिया था उस लॉन्ग ऑफ के इलाके में, और ये पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में आनंद कोनूर कामयाब हुए। लेकिन अब तक इन दोनों ने मिलकर 14 रनों की भागीदारी खड़ी की है दूसरे विकेट के लिए 17 गेंदों में। ये दिलासादायक बात होगी साईराज वॉरियर्स के लिए, थोड़ा सा सुकून उनको मिलता हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी पहला विकेट खोने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से दबाव में आ जाते हैं बल्लेबाज टीम। लेकिन यहाँ पर साईराज वॉरियर्स के इस जोड़ी ने मिलकर अब तक 23 रन जोड़े हैं 26 गेंदों में इस दूसरे विकेट के लिए। फरहान पाटिल दूर वाले छोर से हो किनारा लिया है गेंद ने बल्ले का, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद वैष्णव संगमित्रा के ग्लव्स को लगकर डिफ्लेक्ट हुई। 1 रन बनता हुआ। एक बड़ा स्ट्रोक बनाने के लिए बल्ला हवा में जरूर चला रहे हैं मेघराज सुधनवा, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारे लेकर गेंद वैष्णव संगमित्रा के दस्ताने से लगी। 1 रन बना। रन संख्या बनी है 25, 1 विकेट के नुकसान पर। 25 for 1 पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चलता हुआ। इसके बाद अर्जुन स्पोर्ट्स सुबह टाइगर्स के कप्तान को अपने मन के मुताबिक फील्डिंग लगाने का मौका मिलेगा। उठा दिया हवा में गेंद, कैच का मौका है। जी हाँ, यहाँ पर मिड विकेट पर कैच लेने में कामयाब सरफराज मुल्ला। टाइमिंग बहुत खराब बना रहे थे किशन मेघराज, और टाइमिंग खराब बनाने की वजह से मिड विकेट पर खड़े थे माफ कीजिए सरफराज मुल्ला, और उन्होंने अपनी बाईं ओर जाकर इस कैच को लिया, और किशन मेघराज की पारी समाप्त। 17 रन बनाकर किशन मेघराज वापस लौटे हैं। 18 गेंदों का सामना किया, 4 चौके थे उनके खाते में शामिल, लेकिन एक बड़ी पारी की अपेक्षा जरूर कर रहे थे किशन मेघराज की तरफ से साईराज वॉरियर्स की टीम। लेकिन आज 17 ही रन वो मात्र बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद डाल रहे थे, पुल करने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बनाई उन्होंने, और मिड विकेट पर उनका कैच दबोच लिया था सरफराज मुल्ला ने। ये दूसरा विकेट का नुकसान होता हुआ
साईराज वॉरियर्स की टीम का रन संख्या बनी है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी मछली मिलती हुई फरहान पाटिल को, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके थे, उस मेहनत का फल कम से कम इस ओवर में तो जरूर मिला है फरहान पाटिल को। और एक विकेट अब उनके झोले में जाता हुआ। नए बल्लेबाज रोहित पाटिल जा रहे हैं मैदान पर। 25 पर 2 विकेट खो रही है साईराज की टीम। कि आर शेट्टी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कल एक ही मैच होगा, वो है सेकेंड क्वालिफायर मैच, और उसके बाद गुरुवार के दिन मेगा फाइनल खेला जाएगा। लेकिन फाइनल में कौन आएगा, एक टीम का तो हमें पता चलेगा। ये मैच खत्म होने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक टीम कौन सी फाइनल में जाएंगे। लेकिन जब तक कल का मैच नहीं होता तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ गुरुवार को खेलेगा। तो 3 टीम्स जद्दोजहद करेंगी फाइनल्स में आने के लिए। अर्जुन स्पोर्ट्स, सुब्री टाइगर्स, साईराज वॉरियर्स, साई स्पोर्ट्स और KR शेट्टी किंग्स, ये 4 टीम्स हैं और इनमें बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा, जद्दोजहद चलेगी फाइनल्स में आने के लिए। तो रोहित पाटिल आए हैं मैदान पर, एक स्लिप उनको लगाया गया है। हो ये गेंद घाटे का सौदा तो जरूर होगा। जी हाँ, एक बार और गेंद को डालना पड़ेगा फरहान पाटिल को। लेग स्टंप के बहुत बाहर गेंद को डाल रहे हैं। वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर संजय रोकड़े की तरफ से। इस वाइड के चलते रन संख्या बनी है 26, 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के ऑफिशियल्स है संजय रोकड़े, निखिल माड़गी, ऑफिशियल्स अंपायर्स इस मैच के। ओहो, बढ़िया गेंद है और प्लम्ब हुआ है। रोहित पाटिल बैकफुट पर जाकर खेलने के चक्कर में प्लम्ब हुआ है। सीधी गेंद को डाल रहे थे, पता नहीं किस तरीके का वो स्ट्रोक मन में लेकर खेल रहे थे। बिल्कुल गेंद के लाइन से बल्ला अलग करते हुए खेलने की कोशिश में गेंद नीचे रहकर आई, पैर पर लगी और सीधे स्टंप्स के सामने। तो रोहित पाटिल कुछ बड़ा कारनामा नहीं करके दिखा रहे हैं आज के इस मैच में। उनको भी बढ़त देकर थोड़ा सा ऊपरी क्रम पर भेजा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो भी इस ओवर में शिकार बनते हुए फरहान पाटिल के खाता नहीं खोल रहे हैं और ये तीसरा नुकसान होता हुआ। तो अब 3 विकेट खोने के बाद साईराज वॉरियर्स की रन संख्या बनी है 26। तो अचानक हालात थोड़े से नाजुक साईराज वॉरियर्स के लिए, क्योंकि एक ही ओवर में 2 तगड़े बैट्समैन का विकेट खो रही है। सबसे पहले किशन मेघराज आउट हुए, सेट लग रहे थे, ऐसा लगा कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन एक गलत टाइमिंग भरा स्ट्रोक जो वो खेल रहे थे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। सरफराज मुल्ला ने मिड विकेट पर उनका कैच लिया। रोहित पाटिल भी आए हैं मैदान पर खेलने के लिए, लेकिन कुछ बड़ा कारनामा करके नहीं दिखाया उन्होंने, प्लम्ब होकर वापस लौटे पवेलियन में। तो अब 2 खिलाड़ियों को गोल्डन डक मिलता हुआ, एक दीपक राक्षे और अभी रोहित पाटिल 0 रन बनाकर वापस लौटे पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, कृष्णा बागड़ी बड़े अच्छे फॉर्म में है। कृष्णा बागड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में कई दफ़ा उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की है और आज वही जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर, क्योंकि अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के सामने एक अच्छा तगड़ा टोटल उनको खड़ा करना है इस पहले क्वालिफायर मैच में, तभी जाकर कुछ मौका मिलेगा वापसी का। वो नीचे रहकर आई गेंद, हल्के से इस गेंद को बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया। थर्ड मैन के इलाके में गेंद आई है, वसंत शाहपुरकर ने गेंद को रोका। 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में बागड़ी कामयाब हुए। पारी की रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 27, साईराज वॉरियर्स 27 for 3। छठा ओवर और पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। एक छोर पर सुधन कुलकर्णी, एक बड़ी भूमिका उनको निभानी है, एक बड़ा किरदार निभाना होगा उनको आज इस मैच में। एक साझेदारी की आवश्यकता है। T20 के फॉर्मेट में अच्छी साझेदारी अगर बनती हैं तो बड़े बड़े स्कोर का पीछा किया जा सकता है। IPL में आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त
200 रन भले ही ना बने हो कल, लेकिन 210 तक तो टीम पहुंची थी केकेआर की। ड्राइव, अच्छा दमदार ड्राइव, लेकिन अच्छी बहुत खराब फील्डिंग। वहां पर संतोष सुड़गे पाटिल मिस फील्डिंग कर रहे हैं और ये चौका बनता हुआ। करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था, मिड ऑफ के इलाके से उस गेंद को रोकने के लिए आ गए थे संतोष सुड़गे पाटिल। और आमतौर पर संतोष सुड़गे पाटिल कभी भी मिस फील्डिंग नहीं करते, लेकिन आज उनके तरफ से मिस फील्डिंग बनी। और जहां पर एक आधा रन बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वहां पर 4 रन जरूर बने। ये बोनस का चौका मैं कहूंगा मिल रहा है सुधनवा कुलकर्णी और साईराज वॉरियर्स की टीम को। ओह, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, थोड़ी नीचे भी रही। सुधनवा ने खेलने की कोई कोशिश भी नहीं कि इनको जाने दे रहे हैं वो विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर ये समाप्त होता हुआ। 2 करारे झटके दिए हैं इस ओवर में फरहान पाटिल ने। तो 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद साईराज वॉरियर्स 31 रन बना रही है 3 विकेट के नुकसान पर। आनंद कोनूर की पहली गेंद डॉट, कोई रन नहीं बना। पंच किया उस गेंद को बैकफुट पर जाकर स्वीपर कवर के इलाके में फील्डर तैनात। 1 रन निश्चित तौर पर बनता हुआ कृष्णा बागड़ी के लिए। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले अब खत्म हो रहा है और फील्ड फैलाई गई है पावर प्ले खत्म होने के बाद। कुन्नूर की यह गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी तेज डालते हैं गेंद को और रनअप तो बहुत छोटा है उनका, लेकिन बढ़िया तेज गेंदें डालते हैं वो। इस बार भी बीट कराने में कामयाब हुए हैं सुधनवा कुलकर्णी को, कोई रन नहीं बना। इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन लाया, लेकिन वाइड गेंद का इशारा हम पर निखिल माड़गी कर रहे हैं। 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 33 for 3। 7वां ओवर पारी का प्रगति पर है आनंद कोनूर का। पंच किया उस गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के इलाके में स्वप्निल रेलवे खड़े हैं, सफाई के साथ गेंद को रोककर थ्रो किया उन्होंने, लेकिन 1 रन बनता हुआ सुधनवा के खाते में। 34 पर जा पहुंचा स्कोर साईराज वॉरियर्स की टीम का। सुधनवा अब जा पहुंचे 16 पर और कृष्णा बागड़ी खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। इस जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर है भविष्य टीम का साईराज वॉरियर्स के लिए। यॉर्कर किस्म की गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में आई गेंद, 1 रन बना। रेलवे ने गेंद को फील्ड किया। 35-35 3 विकेट खो रही है साईराज वॉरियर्स की टीम। दीपक राक्षे, किशन मेघराज और रोहित पाटिल, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज वापस लौटे हैं पवेलियन में। एक छोर पर सुधनवा, एक छोर पर खड़े हैं कृष्णा बागड़ी। हवा में जरूर थी, लेकिन मिड ऑन के इलाके में फील्डर भी वैसे नहीं है उस इलाके में
लोगों के तरफ से आए हैं गेंद को उठाने के लिए संतोष पाटिल, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन एक रन बनने के बाद ओवर समाप्त हो रहा है। आनंद कोनूर का बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 18 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में जा रहा है। तो 4 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं आनंद कोनूर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी पावर प्ले के दरमियान की है उन्होंने। तो 7 ओवर में 36 रन बना रही है इस वक्त साईराज वॉरियर्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 1 पर गिरा, दूसरा 25 पर गिरा, तीसरा विकेट गिरा 26 पर। अब स्कोर है 36। 10 रनों की साझेदारी पनप रही है इस वक्त सुधर्मा कुलकर्णी और कृष्णा बागड़ी के बीच। फरहान भी अपना कोटा पूरा करने के लिए आ चुके हैं। तो ये स्वप्निल रेलवे की सोच है कि ये अच्छी गेंदबाजी जो चल रही है इनको पूरा कोटा पूरा किया जाए उनका। और फरहान पाटिल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक। ऑस्ट्रेलिया की बाहर की गेंद बगैर किसी अंदाजे के बल्ला चला रहे हैं। गेंद और बल्ले की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हवा से जरूर मुलाकात कर रहे हैं कृष्णा बागड़ी। डॉट गेंद हो रही है, थोड़ी सी नीचे रही गेंद, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थी गेंद। उस गेंद को इम्प्रोवाइज करते हुए खेलने की कोशिश, ऑस्ट्रेलिया के बाहर की गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट कराती हुई गेंद गई है संगमित्रा के दस्तानों में बगैर किसी रन के लिए। इस बार कट शॉट खेला पॉइंट की दिशा में, स्वीपर कवर के खिलाड़ी आए हैं हरकत में। सरफराज मुल्ला के रूप में 1 रन बनता हुआ सुधर्मा के लिए। सुधर्मा अब जा पहुंचे 18 पर। पारी की रन संख्या बनी है 37, 37 for 3। अब तक 7.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तो अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में अब तक तो कामयाब हुए हैं। ज़्यादा कोई हावी होने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को अभी तक। हवा में खेला उस वाइडिश मिड लॉन्ग ऑन के इलाके में संतोष पाटिल आए हैं, गेंद को उन्होंने रोका, लेकिन कृष्णा बागड़ी के पास पूरा समय था। 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा किया। रन संख्या बनी है 38, 3 विकेट के नुकसान पर। साईराज वॉरियर्स टॉस जीता आज अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के कप्तान स्वप्निल रेलवे ने, और उन्होंने साईराज को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और उसके जवाब में अब तक 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर का खेल समाप्त होने तक बन रहे हैं साईराज वॉरियर्स टीम के लिए। सुधर्मा कुलकर्णी 18 पर खेलते हुए सामना करेंगे। पंच किया उस गेंद को मिड ऑफ के इलाके में, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए हैं संतोष पाटिल। 1 रन तो बनेगा, इसी रन की मदद से सुधर्मा जा पहुंचे 19 पर। पारी की रन संख्या 39, 39, 3 विकेट के नुकसान पर। हवा में खेला, फ्लिक किया था उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। संतोष पाटिल लॉन्ग ऑन से आए, एक हाथ से पिकअप और थ्रो बहुत बेहतरीन किया उन्होंने। और उस बेहतरीन फील्डिंग और थ्रो के चलते 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा कृष्णा बागड़ी को। इस 1 रन की मदद से रन संख्या बनी है 40, 3 विकेट के नुकसान पर। 40 for 3 साईराज पारी का 8वां ओवर और इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर आएंगे फरहान पाटिल। सामना करेंगे सुधर्मा कुलकर्णी, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 19 और बागड़ी खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। हाँ, ऑप्शन के बाहर की गेंद थी, उसको स्मैश किया था इस गेंद को कवच के इलाके में। मलतवाड़कर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन के साथ 8वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। तो 8 ओवर के बाद 41 रन 41, 3 विकेट के नुकसान पर साईराज वॉरियर्स की टीम बना रही है। 20 रन बनाकर खेल रहे हैं सुधर्मा कुलकर्णी और 5 रन बनाकर खेल रहे हैं कृष्णा बागड़ी। 4 ओवर का कोटा दोनों गेंदबाजों ने पूरा किया। सबसे पहले आनंद कोनूर 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 18 रन 1 विकेट, और फरहान पाटिल 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 23 रन और 2 विकेट। तो एक तरफ से फिरकी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, तो एक तरफ से मध्यम गति के गेंदबाजों ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है।
तो ये प्रमुख जो दो गेंदबाज हैं अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के, उन्होंने अपने कोठा पूरा किया और अब तक 41 रन दे चुके हैं, लेकिन 3 विकेट भी लिए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ वसंत शाहपुरकर आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। इससे पहले कि वसंत शाहपुरकर नए ओवर की शुरुआत करें, आगे का विवरण देने के लिए आएंगे माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर चेतन भैलूर। Flight and delivery straight to the bowler in his own follow through, trying to field it. Good stop, I would say, rather than a good feeling, but importantly a dot ball. Going to the back foot, creating some room for himself, and a direct hit maybe, but then the batsman survives. Good fielding there by the fielder in the gully, I would say, in the point region. Meanwhile, equally well run by these two batsmen for a single. With that single, the scorecard for that limps along to 42 for the loss of 3 wickets. To tell you that we are in the 9th over of the innings, going at a current run rate of 5.04 runs per over, and these two batsmen trying to build an innings and partnership for themselves and the team. They know that partnership is a must now to try and get some good runs on the board. This match is very equally poised, and a first qualifier played between two good teams here, Sairaj Warriors and Arjun Sports Hubli Tigers. And to tell you that whoever wins this match will straight away step into the final to be played day after tomorrow. Well, first time it is Krishna Bagadi Kitty to face the bowler Vasant Shapurkar. Oh, appeal there, we've got to wait and watch. Up goes the finger, has been stumped there. So Vasant Shapurkar does that chip in the first over of his bowling quota. He picks up that wicket of Krishna Bagadi. That is what I was just trying to tell you, that a partnership is much required for the Sairaj Warriors. The 4th wicket goes down in the form of Krishna Bagadi Kitty, trying to step forward and stretch out and go to the pitch of the ball and drive him. Beaten all ends up into the hands of the keeper, and keeper in a flash did he take off the bails. The 4th wicket goes down in the form of Krishna Bagadi, who managed to get just 5 runs of the 7 deliveries that he played. The only man hanging out there for Sairaj from the beginning, who came in as the opener, is Sudhanva Kulkarni, who's batting on 21 runs of 23. And to join him now, it is Narendra Mangore, walks onto the crease, and he's about to face the ball of Vasant Shapurkar, doing the damage in the first over of his bowling quota. Well, checking his guard with the umpire and also trying to play a big innings now, which is much needed for his team than himself at the moment. Narendra Mangore to face Vasant Shapurkar. 42 for 4. Again, played of soft hands, waited for the ball to come on to him, to his pads. Played off his pads, in fact, waited for the ball to come to the bat, slightly slower and flighting the delivery there. And a single for the taking towards the square leg. With that single, Narendra Mangore opens his account and takes the scorecard for the ticking along to 43
for the loss of 4 wickets. That gets Sudanva on strike. As I told you, he's batting on 21. Slightly short of length, they're going to back foot and cutting him straight to the fielder there. I think Parikshit Okund in the point region for a dot ball. One of the better fielders in the side is Parikshit Okund. Once again, Vasant Shapurkar to Sudanva Kulkarni. To back foot and playing with soft hands there. The ball going to a short cover region. Parikshit coming in from point and fielding it. Meanwhile, the batsman crossed over for a single. With that single taken, it also completes the over. So after the completion of 9 overs, scorecard reading 44 runs for the loss of 4 wickets. These two batsmen have a job on hand to do this morning. The captain of Arjun Sports Hubli Tigers won the toss, Swapnil Elve, and asked Sairaj to bat first, invited them, and in doing so, they bowled 9 overs, given 44 runs and picked up 4 important wickets of Sairaj. The top order is almost back in the pavilion, and the 2 middle batsmen playing there are Sudanva Kulkarni, one who had come in as the opener, standing strong at one end, not giving away the wickets so easily. And to join him is Narendra Mangure, who's just come in and got a run there. And it is change in bowling now. Swapnil Elve, the captain, coming into the act. Swapnil Elve comes up with his bowling quotas. First over and innings 10th over to the batsman Sudanva Kulkarni. Going to the back foot and again cutting him. Parikshit Okund, missing it completely. Maybe he came in quickly as a cheetah, but the odd bounce may be doing it. If the first time he had to take and collect and had a shy at the stumps, the kind of a fielder he is, maybe he had an outside chance. But meanwhile, good running by these two batsmen to take that cheeky single. With that single, the scorecard further ticks along to 45. Arjun Sports Hubli Tigers have really kept it very tight here. They've given away just 45 runs and 9.1. Once again, Swapnil Elve in his bowling quotas first over to the batsman Narendra Mangure. Again, waited for the ball. They straight to the fielder there. This time, Parikshit Okund, the way he comes onto the field, they wanted a single, but quickly did Sudanva tell him, no, my friend, it's Parikshit there and it's better not take a run, and equally well field it for a dot ball. Maybe the batsman been disturbed there, fielder trying to do some adjustments. Slightly short of length, they're going on the back foot and just flicking off his pads towards mid-wicket. A fielder coming in from deep, Farhan Patil, and Sarfraz, I think. No, Farhan, it is Farhan Patil, comes in and fields. The batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard ticks along to 46 now. Going to the back foot and trying to pull him there, but straight onto the carpet, onto the pitch area, towards the bowler himself. In his follow-through, Swapnil Elve fielding for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 46. Going to the back foot and just playing it, driving with soft hands towards long on. The fielder this time comes in and fields Sarfraz Mullah there, one for the taking. With that single as the batsman crossed over, the scorecard ticks along to 47. 9.5 overs have been bowled and the scorecard reading 47. Again going on to the back foot and playing off his pads towards mid-wicket area. Farhan Patil comes in and fields. The batsman crossover for another easy single. With that single, it also completes the overs. After the completion of 10 overs, scorecard reads 48 for the loss of 4 wickets. So Drinks has been called onto the field now after the completion of 10 overs.
We are halfway mark in this first innings of this first qualifier. To tell you, "48 for 4." Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. To tell you the scorecard and give you details now. 10 overs have been bowled in the scorecard, reading 48 runs for the loss of 4 wickets. Those 4 wickets to go down was of Deepak Rakshi, got a big duck for himself. Then it was Kishan Meghraj who got 14 runs of the 18 deliveries. Rohit Patil also got a duck, was just LBW. And then Krishna Bagadi, the last man to go back, got 5 runs of the 7 deliveries that he played. The 2 men out there in the middle are Narendra Mangore, who's batting on 3 runs of the 4 deliveries, and Sudhanva Kulkarni is batting on 24 runs of 28 deliveries. And they've also put up a nice bit of partnership between themselves of just 6 runs of the 9 deliveries, a partnership between Sudhanva and Narendra Mangore. Well, scorecard reading 48 for 4. Again, flighted delivery, watchfully played by the batsman Narendra Mangore, respectfully played a forward defensive shot to the bowler Vasant Shapurkar, who's coming in to act with his bowling quota. Second innings, a big appeal there, the umpire not interested, says it's of the thigh pad there, everybody going up, big appeal there, but the umpire was very clear in his mind that, come on, let us get along with the game, gentlemen. It is off the pads there, but lucky enough the ball not hitting the bat and going towards the fine leg, towards the boundary. Fine leg also being up in the circle, and importantly a dot ball again. Again going to the back foot and flicking his off his pads towards short fine leg up in the circle. One more for the taking as the batsmen cross over. With that single, the scorecard for the limps along to 49 for the loss of 4 wickets. Again played it up, Pishli cries of catch it, got to wait and watch.
He makes no mistake. Who else it is? Santosh Patil made it look so simple. The big fish and the man who was standing strong there up till now, that is Sudanwa Kulkarni, trying to hit a lofted drive towards wideish of long on, made it look so simple in the end. Santosh Patil picks up his second catch in this innings, and the fifth wicket goes down in the form of Sudanwa Kulkarni. Managed to get 24 runs of 29 deliveries. Well, at the fall of Sudanwa Kulkarni, who managed to get good 24 runs of 29 deliveries with 2 boundaries, it is Omkar Vernekar walks onto the crease, and he would be at the non-strikers as the batsman crossed over while the catch was taken. Well, good catch there by Santosh Patil at wideish of long on. And the tradition continues that wicket falling after the drinks at the Union Gymkhana ground. Again, trying to hit a big one. The ball going towards the gully. Again, straight to the field. A direct hit maybe, but who else it is? Parikshit Wakkun there. Oh, it's all haywire there, running around and throwing around. The ball going to all places of the ground there, from point to long on towards the third man there. The odd bounce before the keeper also could take it. Meanwhile, in the end, 2 runs for the taking. Again, flighted delivery, driven it to the wideish of cover. Nandakumar Malathwalkar trying to field it single-handedly, missing it, but Farhan Patil equally covering him from behind, and the batsman crossover for another single. With that single, it also completes the overs after the completion of 11 overs. Scorecard reading 52 for the loss of 5 wickets. Half of the side is back for Sairaj in the dugout. 11 overs have been bowled and 52 runs on the scoreboard. Let me tell you, Arjun Sports Hubli Tigers have really kept it very tight for Sairaj Warriors, not allowing them to just take to that fly off. They're just still on the runway, trying to take off. Every time they try to take off or gather some big runs, try to hit some big shots, the wicket goes down, and that pressurizes the batsman and it contains the runs. So in doing so, they have lost 5 wickets and 55 on the board. Once again, it is Swapnil Elve, the captain, comes into the act with his bowling quotas, second and innings 12th over to the batsman Narendra Mangore. Shot of length, played it uppishly there over the third man region. Ganesh Kangralkar just be waving, saying hello, tata and bye-bye, because the ball was just way above Ganesh Kangralkar there at the third man. Shot third man up in the circle. Width been offered. Good shot there by the batsman, that flashing it hard over the third man for a boundary. With that boundary, the scorecard further ticks along to 56. Good shot there by Narendra. Going to the back foot and driving him all along the carpet towards mid-wicket. A fielder comes in quickly and fields. It is Farhan Patil there, comes in and fields at mid-wicket. 1 run for the taking. With that single, the scorecard further ticks along to 57 for the loss of 5 wickets. That gets Omkar Vernekar on strike, a left-hander. Many a times he has been proved very economical and effective to his team, whichever team he has played earlier, and even in this tournament he's played well enough. Played with soft hands there towards the gully region. Fielder Parikshit Wakkun comes in quickly to field it single-handedly, but only manages to stop the ball there. Meanwhile, the batsman crossover for a single. With that single taken, Omkar Vernekar opens his account and takes the scorecard for the ticking along to 58. Narendra Mangore is batting on 12 runs of the 11 deliveries and is also about to face Swapnil Elve.
Again, Ganesh Kangralkar there, slightly sloppy and slower by the time he could go there. A long time ago, he was a young captain, I remember him, but now he's the senior member of the camp, Ganesh Kangralkar, with all the experience that he has behind him. 1 run for the taking. With that single, the scorecard further ticks along to 59. Played with soft hands again to short fine leg. Anand Konur, the fielder there. Meanwhile, the batsman crossover for another easy single. With that single, Omkar Vernekar moves to 2 runs and takes the scorecard ticking along to 60. Again played with soft hands there to off his pads towards the square leg. Fielder coming in 2 is the call, and easy 2 runs in the end. Good running, I would say. By the time the fielder from the deep, Farhan Patil could come in and field from deep mid-wicket towards short mid-wicket, I would say, or square leg. 2 runs for the taking. Good running by these 2 batsmen there. With those 2 runs, it also completes the over, and after the completion of 12 overs, scorecard reading 62 for the loss of 5 wickets. Well, these 2 batsmen trying to build up an innings and partnership for themselves and the team. And they know that they have a job on hand to do. They need some good runs on the board, at least when they come out to field. They have to have some good runs on the board to defend it at all, if at all they have to win this match. And let me also tell you that rain has been there for the last couple of days, and pitch is completely behaving differently than anticipated. That is the reason this morning Swapnil Elve won the toss and read the pitch correctly and chose to ball first. Again played with soft hands there to the fielder. Yes, no, there's a chance. But both batsmen saying no in the end, and safe home comfortably. Initially, Vasant Shapurkar flighting the delivery there, and Omkar wanting a run, played with very soft hands. Again, flighted delivery, but this time off his toes there, off his pads towards the deep mid wicket, wanting 2-2 is the call. Farhan Patil again quickly coming in from deep mid wicket and fields 2 easy runs for the taking. Good running by these 2 batsmen for 2 more runs. With those 2 runs, the scorecard further ticks along to 64 for the loss of 5 wickets. Omkar Vernekar is batting on 4 runs with those 2 runs that he took. Playing up pitchly there, cries of catch it. Who else? The captain coming under it. Made it look so simple. Another wicket goes down begging. That is what I'm trying to tell you and everybody, that every time they're trying to pedal up or accelerate, trying to hit some big shots, they're losing the wicket. They're throwing their wickets away. What they need to do is just stand there, spend some time on the crease, gather runs as much as possible so that they have something on the board when they can come back to field and defend it. In trying to accelerate and trying to hit a big one, Omkar Vernekar loses his wicket. A good catch taken at long off by the captain Swapnil Elve. So the 6th wicket goes down in the form of Omkar Vernekar. Vasant has already picked up three wickets of his bowling. Shubham Gaundwadkar comes into the crease, comes onto the crease at the fall of the batsman Omkar Vernekar, who managed to get 4 runs of the 5 deliveries that he played at a strike rate of 80 runs. He was caught by Swapnil Elve of the bowling of Vasant Shapurkar at a long off. So 12.3 overs have been bowled and the scorecard reading 64 for 6. I would say Sairaj is in a bit of trouble now with 64 for 6. They have to get some runs on the board there.
Well, Vasant Shapurkar once again to the batsman. As the batsman crossed when the catch was taken, it is Narendra Mangore on strike. Played it with full face of the blade, trying to play it towards the coverage, and the ball going towards a point. And who else? Parikshit Wakun comes in quickly and fields a dot ball. With that dot ball, the scorecard still reads 65. This time towards the onside there, just a gentle push of his pads going to the pitch of the ball. Flighted delivery up to the batsman by the bowler, Narendra Mangore, just flicking it off his pads and played with soft hands, wanting a single. Again, ball going to Parikshit Okund for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 13 overs. Scorecard reading 66 for the loss of 6 wickets. As there would be change in bowling, there would be change in commentary as well. I asked my co-commentator Pramod Jappe to take on in Hindi. धन्यवाद चेतन। तो 13 ओवर में 65 रन बन रहे हैं साइराज के लिए, लेकिन 65 रन बनाने के लिए 6 विकेट भी खो रही है। रनों की रफ्तार सिर्फ 5 चल रही है, ये काफ़ी नहीं है T20 के फॉर्मेट में। और ख़ासतौर पर अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के सामने एक तगड़ा स्कोर तो होना चाहिए, लेकिन देखेंगे अब आगे क्या होगा। शॉर्ट गेंद को डाल रहे थे, कलाई को उपयोग किया, हल्के से टर्न किया उस गेंद को, उसका स्क्वायर लेग के इलाके में 1 रन बनेगा। दूसरे की मांग, जी हाँ बिल्कुल, दूसरे रन भी पूरा करते हुए वसंत शाहपुरकर आए हैं मिड विकेट के इलाके से। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन 2 रन मांगुरे के खाते में। इन 2 रनों के साथ अब 67 for 6। स्वप्न रेलवे की ये गेंद, फिर एक बार कलाई को उपयोग किया, हल्के से स्क्वायर लेग के इलाके में टर्न किया। पहला रन बहुत तेज, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। वसंत शाहपुरकर उसेन बोल्ट की तरह स्प्रिंट तो लगा रहे थे, उस गेंद के ऊपर आए भी जरूर, थ्रो भी किया, लेकिन उनसे कहीं तेज दौड़ रहे हैं ये 2 बल्लेबाज। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। शुभम गौंडाडकर और नरेंद्र मांगुरे दौड़ रहे हैं विकेटों के बीच में। इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या बनी है 69 for 6। बैकफुट पर गए, स्टीयर किया इस गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर तैनात गणेश कंगराड़कर के रूप में। बहुत तेज गेंद जा रही थी गणेश के पास, इसलिए रन लेने का कोई इरादा भी नहीं जताया बल्लेबाजों ने। और गेंद वापस स्वप्निल रेलवे के पास। शुभम गौंडाडकर ने खाता नहीं खोला। 20 रन बनाकर नरेंद्र मांगुरे अपनी टीम की डूबती हुई नैया को संभाल रहे हैं। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को कवच के इलाके में। नंद कुमार मलतवाड़कर जब तक कि गेंद के ऊपर फील्ड करते आकर 1 रन बनता हुआ नरेंद्र मांगुरे के लिए। मांगुरे पहुंचे अब 21 पर। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 70, 6 विकेट के नुकसान पर। हालात अभी भी स्कोरबोर्ड के इतने अच्छे नहीं हैं। जहां तक साइराज की बैटिंग की बात करें तो उनकी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी है उनके खेमे में, लेकिन आज बहुत जल्दी विकेट खो रही है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उनके विकेट खोए हैं, इसीलिए एक बड़ा स्कोर जो बनना चाहिए था वैसे तो अब तक बना नहीं है, लेकिन अभी भी मौका है उनके पास कुछ अच्छे रन बनाने का, क्योंकि मांगुरे और शुभम गौंडाडकर ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज हैं मैदान पर। तो कहीं ना कहीं 150 का आंकड़ा क्या छूने में कामयाब होंगे यहाँ से लेकर आगे। देखें आगे चलकर, हल्के से कलाई को उपयोग किया, टर्न किया, 2 की मांग, पहले बहुत तेज पूरा किया है रन, इस बार नहीं मिलेगा। वसंत शाहपुरकर आए हैं डीप में से, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन शुभम के खाते में, खाता खोलने में कामयाब हुए हैं शुभम गौंडाडकर। पारी की रन संख्या बनी है अब 71, 6 विकेट के नुकसान पर साइराज वॉरियर्स। स्वप्निल रेलवे की अगली गेंद नरेंद्र के लिए।
फिर एक बार सॉफ्ट हैंड से खेला, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। उस कवर और पॉइंट के दरमियान परीक्षित कुंदा आए हैं गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन एक रन के साथ 22 पर जा पहुंचे अब नरेंद्र मांगुरे और पारी की रन संख्या बनी है अब 14 ओवर के बाद 72 रन 72, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों का खेल बाकी है, यानी कि 6 ओवर का खेल बाकी है। तो क्या 140 तक अपनी टीम को ले जाने में कामयाब होंगे साइराज वॉरियर्स के ये दो बल्लेबाज, या फिर 120 के अंदर रोकने की जो कोशिश चल रही है, क्या उसमें अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स कामयाब होंगी? ये सभी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार तो हमें ज़रूर करना होगा, क्योंकि अभी भी 6 ओवर में कुछ भी हो सकता है। जब तक मांगुरे और गौंडाडकर मैदान पर हैं तब तक बसंत चापुरकर नए ओवर की शुरुआत करते हुए इस बार फ्लाइटेड गेंद हो, इस बार घुटनों के बल बैठ कर उस गेंद को ड्राइव करना चाह रहे हैं, बीट हुआ है, कोई रन नहीं बना। थोड़ी सी उछाल लेकर गेंद गई, कोई रन नहीं बना। बढ़िया गेंदबाजी बसंत चापुरकर की, अच्छी गेंद सीध में डाल रहे हैं। रन चुराने में क्या कामयाब होंगे? जी हाँ, कामयाब हुए। हल्के हाथों से धकेल कर खेला था उस गेंद को, उस लिमिट ऑफ के इलाके में ही गेंद आ रही थी। बॉलर जब तक कि बसंत चापुरकर झपट्टा मारते गेंद के ऊपर, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी तालमेल नजर आई, समझबूझ नजर आई। आंखों ही आंखों में इशारा किया और झट से एक रन पूरा किया। अच्छी गेंद बहुत नीचे रही, बैकलिफ्ट कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर खेलने के लिए मजबूर किया है शुभम गौंडाडकर को, कोई रन नहीं बना। शॉर्ट हार्म पुल खेला है इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के इलाके में, दानिश हुनगेकर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन बनता हुआ। 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर 74 for 6। 15वां ओवर पारी का चल रहा है। कलाई को उपयोग किया, हल्के से मिड विकेट के इलाके में घुमा कर खेला, एक रन बनेगा निश्चित, लेकिन दूसरी रन की गुंजाइश नहीं है। बड़े तेज आए हैं गेंद के ऊपर दानिश हुनगेकर, उन्होंने गेंद को रोका, एक ही रन बना। रन संख्या आगे बढ़ रही है 75 75, 6 विकेट खो रही है। सिंगल्स में रन आते हुए इस ओवर में इस गेंद को बैकफुट पॉइंट पर खेला जरूर है, स्क्वायर ड्राइव जरूर किया था गौंडाडकर ने, लेकिन रन नहीं मिलेगा। परीक्षित बड़े चौकन्ने हैं उस इलाके में, गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 ओवर का कोटा पूरा किया है बसंत चापुरकर ने। 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 13 रन दिए हैं उन्होंने और 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। इससे बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण किसी गेंदबाज को, स्पिनर्स को हो नहीं सकता T20 के फॉर्मेट में, कि वो 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहा हो। कोई मेडल नहीं है उनका। 13 रन देकर 3 विकेट उनके झोले में जाने के बाद ये तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया। सबसे पहले फरहान पाटिल ने 4 ओवर पूरे किए, उसके बाद आनंद कोंडूर ने 4 ओवर पूरे किए हैं और अब बसंत चापुरकर 4 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं। अब 3 ओवर की गेंदबाजी वैसे भी स्वप्न निर्भय कर चुके हैं, कोई मेडल नहीं रहा उनका। 21 रन दिए हैं, कोई विकेट तो नहीं मिला उनको, लेकिन वो भी अब कोटा पूरा करने के लिए आ चुके हैं। पारी का 15वां ओवर, माफ कीजिए 16वां ओवर वो जारी करेंगे और उसका सामना करेंगे नरेंद्र मांगुरे। फिर एक बार कलाई को उपयोग किया, फ्लिक किया उस गेंद को, स्क्वायर लेग पर गेंद आई है, बसंत चापुरकर ने गेंद को रोका, 1 रन बनेगा। 25 पर खेल रहे हैं अब मांगुरे। पारी की रन संख्या अब 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब गेर बदलने होंगे साइराज वॉरियर्स की टीम को, क्योंकि अब धीरे धीरे गेंदें कम होती जा रही है, रन आ नहीं रहे हैं। सिंगल्स में रन आते हुए कोई चौका नहीं है, बहुत देर से पुल जरूर किया है, लेकिन फिर एक बार बसंत चापुरकर बहुत बढ़िया फील्डिंग डीप में करते हुए उस मिड विकेट के इलाके में। इस बात का तो बुरा नहीं मान रही है अर्जुन स्पोर्ट्स की टीम, क्योंकि ये विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जरूर हैं, लेकिन उनके पिटारे से कुछ बड़े स्ट्रोक्स तो आए नहीं हैं। सिंगल से काम चलाकर स्कोरबोर्ड को आगे ज़रूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। ये खराब गेंद डाल रहे हैं, गेंद 4 रन के लिए ज़रूर जाएगी और वाइड का इशारा होता हुआ ये केदार जाधव के स्टाइल में गेंद को डाल रहे थे। थोड़ा सा हाथ आड़ा किया था उन्होंने,
और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अर्जुन स्पोर्ट्स और स्वप्निल रेलवे, क्योंकि 5 वाइड गेंदों का समावेश बॉलर के खाते में होगा और 82 पर जा पहुंचा स्कोर। ये 5 रन बोनस साइराज को मिलते हुए ये 5 रन बड़े अच्छे साबित होंगे शायद आगे चलकर, पता नहीं ये जो अतिरिक्त रन हैं ये कब सर चढ़कर बोल सकते हैं, कह नहीं सकते हम। अच्छी गेंद नीचे रही लेकिन बैकलिफ्ट कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर कलाई के सारे मोड़ दिया। 1 रन बनेगा, दूसरे की मांग और थ्रो जितना तेज होना चाहिए वसंत शाहपुरकर का उतना हुआ नहीं है और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहिरा दोनों ने पेश किया, थोड़ा जोखिम उठाया और 2 रन दौड़कर पूरे किए। रन संख्या बनी है अब 84, 6 विकेट के नुकसान पर 84 for 6। ये भागीदारी कहीं ना कहीं चल रही है 20 रनों की। 18 गेंदों में 20 रन अब तक जोड़े हैं इन दोनों ने मिलकर। की गेंद फिर एक बार इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में खेल रहे हैं। 1 रन बनेगा, इस बार दूसरा रन नहीं बनेगा क्योंकि बहुत चौकन्ने हैं वसंत शाहपुरकर। स्क्वायर लेग बाउंड्री से वो पहले ही अनुमान लगाकर आ चुके थे गेंद को उठाने के लिए। 1 रन बनने के बाद रन संख्या बनी है अब 85, 85 for 6। 16वां ओवर पारी का चलता हुआ। अब कुछ विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी करनी ही होगी क्योंकि डेथ ओवर्स का खेल वैसे भी जारी हो चुका है, स्लॉग ओवर्स का खेल जारी हो गया है, लेकिन जितने बड़े बड़े स्ट्रोक्स आने चाहिए आमतौर पर आते हैं वैसे तो आए नहीं है साइराज वॉरियर्स के लिए। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि यही एक जोड़ी ऐसी है जो अगर टिक कर खेलेंगे तो कुछ रन बनेंगे उनके लिए, अन्यथा पीछे अभी भी बल्लेबाज हैं लेकिन अगर उनके पास गेंदें खेलने का कम मौका मिल रहा है तो वो तो क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के ऊपर ही पूरी दारोमदार है टीम की। हवा में खेला इस मर्तबा संतोष के पाटिल के पास मौका नहीं है, उस वाइड लॉन्ग ऑन पर चक्का जड़ा दिया। ये जरूरत थी, 6 रनों की बहुत जरूरत थी और शुभम गौंडाडकर के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। सोलह रन आए हैं स्वप्निल रेलवे के इस ओवर में। उस वाइड को मिला के वो 5 वाइड गेंद खतरनाक भी साबित होते हुए। इस पास सीधा ड्राइव खेला लेकिन सीधी बॉलर की दिशा में, रन तो नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हो रहा है। अच्छा ओवर मैं कहूँगा साइराज बॉलर्स के लिए। 16 रन आए, ये सबसे बड़ा ओवर रहा है अब तक के इस मैच में क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा ओवर तो आया नहीं था 15वें ओवर तक। लेकिन स्वप्निल रेलवे ने 4 ओवर का कोटा पूरा किया है, कोई मेडल नहीं। 37 रन दिए हैं उन्होंने और उनके खाते में कोई विकेट नहीं है। तो अब तक 3-4 गेंदबाजों ने अपने 4-4 ओवर का कोटा पूरा किया। आनंद कोन्नूर, फरहान पाटिल, वसंत शाहपुरकर, स्वप्निल रेलवे। अब 4 ओवर का खेल बाकी है, वो कौन करेगा। 2-2 ओवर डालेंगे 2 गेंदबाज। संतोष के पाटिल एक विकल्प है उनके पास अभी भी। नंद कुमार मलतवाड़कर गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो 2 गेंदबाज हैं, ये गेंदबाजी कर सकते हैं। शायद ये आखिरी 4 ओवर इन दोनों की तरफ से किए जा सकते हैं। देखेंगे कि क्या रणनीति है स्वप्निल रेलवे की। लेकिन पिछले ओवर में जो 16 रन आए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिलासा तो ज़रूर दे रहा है साइराज वॉरियर्स के खेमे में, टीम में, क्योंकि अब 91 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। अब 4 ओवर का खेल बाकी है कुल मिलाकर इस इनिंग्स में। अब संतोष के पाटिल आ रहे हैं इन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला पारी का 17वां ओवर वो जारी करेंगे नरेंद्र मांगुरे के लिए। मांगुरे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उनकी चल रही है अब तक। 28 रन बनाकर खेलते हुए 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक मैराथन इनिंग्स मैं कहूँगा चल रही है इस वक्त नरेंद्र मांगुरे की तरफ से। उठा दिया इस गेंद को हवा में, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्ञानेश होनगेकर कैच को छोड़ रहे हैं। ये आसान था कैच ज्ञानेश होनगेकर के लिए। उस मिड विकेट के इलाके में खराब टाइमिंग जरूर बना रही थे, टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे थे मांगुरे, लेकिन एक अच्छे फील्डरों में एक माने जाते हैं ज्ञानेश होनगेकर के हाथों से गेंद छिटक गई
और नरेंद्र मांगोरे जैसे बैट्समैन का कैच ऐसे वक्त पर छोड़ना, कहीं खतरे की घंटी ना बजा दे वो अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए। 1 रन बना मांगोरे के लिए। ओ छकाने में कामयाब, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गुड लाइन पर टप्पा खिलाया, सीम पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी काटा बदल कर गई। वैष्णव संघमित्रा ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। 29 पर खेल रहे हैं मांगुरे और 9 रन बनाकर शुभम गोंडाडकर सामना करेंगे। संतोष के पाटिल के मन में ये मलाल रहेगा कि पहली गेंद पर विकेट चटकाने का मौका मिला उनको। हवा में, ओ क्या बढ़िया कैच, परीक्षित ने छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद उस पॉइंट के इलाके में क्या बेहतरीन कैच लिया। ओहो बहुत बढ़िया कैच था, सही समय पर उन्होंने छलांग लगाई। क्या जजमेंट था उनका, क्या टाइमिंग बनाई उन्होंने। गेंद हवा में जा रही थी, बहुत ऊपर से भी जा रही थी। वैसे भी बहुत लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी तो नहीं है परीक्षित ओकुन, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने जो छलांग लगाई बढ़िया टाइमिंग के साथ, वो कमाल की टाइमिंग के चलते उन्होंने इस कैच को लिया और शुभम गोंडाडकर की पारी समाप्त। 9 रन बनाकर वो वापस लौटे पवेलियन में। 7वां नुकसान होता हुआ सायराज वॉरियर्स की टीम का। रिप्ले में देखेंगे हम शाम को ये कैच। निश्चित तौर पर आईटीसी स्पोर्ट्स के तरफ से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं हम कि आर शेट्टी मेमोरियल T20 सीधा प्रसारण शाम को जाएंगे, हाइलाइट्स देखेंगे तो हम ये कैच 2-3 बार ज़रूर देखेंगे। हर कोई देखेगा ये कैच, बहुत बेहतरीन कैच लिया था परीक्षित कुन पॉइंट पर। अब आए हैं अभिषेक देसाई मैदान पर, एक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं और अब उनको कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। अभी तक सायराज वॉरियर्स के लिए 92 रन, 7 विकेट खो रही है। कम से कम इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के ऊपर और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स जैसे टीम के सामने 140-150 रन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिलहाल तो 92 पर रोकने में कामयाब हुए हैं अब तक 7 विकेट लेने के बाद अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। तो 1 विकेट मिला अब संतोष के पाटिल को, थोड़ा सा मलाल कम हुआ उनका। फुल टॉस गेंद थी लेकिन थोड़े आश्चर्य में थे वहां पर अभिषेक देसाई को। समझ में नहीं आया कि क्या करे उस फुल टॉस गेंद के साथ, क्योंकि उनका सोच विचार कुछ और चल रहा था। वो किसी और गेंद के बारे में सोच रहे थे, गेंद कहीं और आई, उनके सोच के विपरीत आई, इसीलिए वो गेंद को खेल नहीं पाए, कोई रन नहीं बना। हाँ ये धीमी गेंद डाल रहे थे, बहुत अच्छा मिश्रण गेंदबाजी में करते हुए उंगलियों को फेर कर इस गेंद को डाला था संतोष के पाटिल ने। डॉट गेंद कराने के बाद वापस गेंद लौट रही है। संतोष के पाटिल की क्या किफायती ओवर चल रही है, 5 गेंदें डाल चुके हैं, 1 ही रन आया, 1 विकेट भी मिलता हुआ है, वो भी डेथ ओवर्स में। इससे बढ़िया हो नहीं सकता कुछ भी T20 के फॉर्मेट में। ओ एक बार और चारों खाने चित हुए हैं अभिषेक देसाई। क्या बढ़िया ओवर समाप्त हुआ, 1 रन 1 विकेट 1 ओवर में। ये है संतोष के पाटिल का बॉलिंग विश्लेषण। तो 17वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। 17 ओवर के बाद 91 रन 91 फॉर 7, माफ कीजिए 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर 92 फॉर 7। अब गेंदबाजी करने के लिए दानिश होनगेकर की याद अब कहीं जाकर आई है। तो तरकश में से तीर अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं स्वप्निल लड़वे। पहले उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया है, तो पहले 4 प्रमुख गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनसे उन्होंने 4-4 ओवर का कोटा पूरा डलवा के लिया। उसके बाद विकेट भी चटकाने में सब कामयाब हुए। खुद स्वप्निल लड़वे को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन बाकी के गेंदबाजों ने निराश नहीं किया। तो अब और एक तरकश में तीर है उनके, लेकिन दानिश होनगेकर आमतौर पर सलामी गेंदबाज के प्रमुख गेंदबाज के रूप में दानिश होनगेकर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग योजना है कप्तान स्वप्निल लड़वे की, कुछ अलग योजना लेकर उन्होंने गेंदबाजी को सही तरीके से क्रम में लाया और सब कुछ कारगर सिद्ध हुआ। मांगुरे करके ये गेंद हवा में पुल किया, क्या कैच लेने में कामयाब, बहुत जबरदस्त कोशिश वहां पर
संतोष के पाटिल खड़े हैं, उन्होंने डाइव लगाई, बहुत बढ़िया कोशिश, कैच मुश्किल था उनके लिए लेकिन चौका बना, लेकिन पुरजोर कोशिश की उन्होंने, ईडी चोटी का जोर लगाया, या तो कैच लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसके बाद चौका रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौका तो बना। ये 96 पर जा पहुंचा स्कोर अब इस चौके की मदद से। इस बीच मिड विकेट के इलाके में खेला, 1 रन का इजाफा हो रहा है। संतोष सुलगे पाटिल ने आकर गेंद को फील्ड किया, रन संख्या बनी है 97। थर्ड मैन के ऊपर गेंद को खेला, 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन में लगा वसंत शाहपुरकर ने आकर गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर है 98। ओ फिर एक बार मिस टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक जरूर है, लेकिन स्क्वायर लेग के इलाके में संतोष सुलगे पाटिल लंबे लंबे डग भरते हुए आए हैं। ओ बहुत बेहतरीन फील्डिंग की, बाउंड्री के करीब उन्होंने गेंद को रोककर 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ रहा है। 100 रन, 100 का आंकड़ा छूने में कामयाब। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिलासा तो देगा, जब भी कोई टीम 3 आंकड़े पार करती है तो थोड़ा सा दिलासादायक बात होती है उनके लिए, उनके टीम के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है रन, अभी भी बहुत कुछ मंजिल पानी है और कुछ और रन बड़े बड़े आने चाहिए यहाँ से लेकर आगे। और ड्राइव करने की कोशिश बुरी तरीके से बीट हुए, ठीक तरीके से फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास कर रहे थे नरेंद्र मांगुरे, लेकिन गेंद और बल्ले का फिर एक बार कोई संपर्क नहीं हो रहा है। वैष्णव संघमित्र ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। पारी का 18वां ओवर, आखिरी गेंद, इस बार इनसाइड आउट खेलने में कामयाब। वाइड लॉन्ग ऑफ के इलाके में स्वप्निल लड़वे हैं, उस इलाके में जी नहीं, वो तो नहीं है, सरफराज हैं शायद, सरफराज मुल्ला हैं, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन बनने के बाद 18वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। 101 रन बन रहे हैं 18 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर साईराज। तो क्या 125 बनेगा स्कोर या फिर 120 के अंदर रोकेंगी अर्जुन स्पोर्ट्स सुबह टाइगर्स की टीम इस पहले क्वालिफायर मैच में? आपको मैं याद दिलवा दूं कि ये पहला क्वालिफायर मैच चल रहा है। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल्स में अपना स्थान पक्का करेगी गुरुवार के दिन। जो टीम हारेगी उनके पास एक मौका है एक मैच खेलने का, क्योंकि आज दोपहर का जो फर्स्ट एलिमिनेटर मैच है वो मैच जो भी टीम जीतेगी, वो केआर शेट्टी जीते या फिर साई स्पोर्ट्स जीते, उनके साथ कल खेलने का मौका मिलेगा। तो एक अवसर जरूर है, लेकिन आज दोपहर के मैच में अवसर नहीं है। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। हारने वाली टीम आज दोपहर को वर्तमान श्रृंखला से सीधे बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम को कल एक मौका मिलेगा खेलने का। संतोष के पाटिल फुल टॉस गेंद डाल रहे हैं, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे हैं। स्वीपर कवर के इलाके में गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर फरहान पाटिल 2 रन दौड़कर पूरे किए। 103 7 विकेट के नुकसान पर अब सिर्फ 11 गेंदों का खेल होना बाकी। 11 गेंदें बाकी हैं। चौके छक्के आने चाहिए, 125-30 होना चाहिए। कहीं ना कहीं बॉलर्स को मौका मिलेगा साईराज के लिए। जी नहीं, और एक इस वाइड मिड विकेट के इलाके में खेला वसंत जी नहीं, स्वप्निल लेवे का बहुत बढ़िया फील्डिंग। तकरीबन 10 गज भाग कर गए और गेंद को रोका बाउंड्री के करीब। एक ही एक्शन में थ्रो किया उन्होंने, 2 रन बने, लेकिन 105 7 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ।
तो रनों पर अंकुश अभी भी लगाने में कामयाब हुए हैं अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम। सीधा ड्राइव, फिर एक बार स्वप्निल लड़वे हरकत में आ रहे हैं। साफ सुथरी फील्डिंग, एक ही रन बनेगा मांगूरे के लिए। इस एक रन की मदद से अब 106 रन साईराज वॉरियर्स 7 विकेट खोने के बाद 42 पर खेल रहे हैं नरेंद्र मांगूरे। 34 गेंदों का अब तक सामना किया है। अभिषेक देसाई का बल्ला अभी तक कुछ बोला नहीं है। 4 गेंदों में एक ही रन बना रहे हैं। वैसे भी वो बड़े आक्रामक तरीके के बल्लेबाज हैं, लेकिन अब तक उनका बल्ला बोला नहीं है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक तो नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आई है, स्वप्निल रेलवे ने गेंद को उठाया है। एक रन बनेगा अभिषेक देसाई के लिए। 107 पर जा पहुंचा स्कोर और 2 रन पर खेल रहे हैं अभिषेक देसाई। तो इस ओवर में भी सिंगल से काम चलाने के बाद कुल मिलाकर अब 6 रन आए हैं इस ओवर में। इस लॉन्ग ओवर्स में 6 रन कोई भी बॉलर दे रहा हो तो वो अच्छा गेंदबाज है। ये फिर एक बार अच्छी टाइमिंग तो नहीं बना रहे हैं मलतवाड़कर है। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद को फील्ड तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक ही रन बनता हुआ। तो अब 108 रन बन रहे हैं। 108 for 7। आखिरी गेंद 19वें ओवर की। या बहुत बढ़िया ड्राइव, इनसाइड आउट। अभिषेक देसाई के स्लॉट में गेंद को डाल रहे थे संतोष पाटिल, और इस गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के इलाके में भेज दिया है 4 रन के लिए। ये चौका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिलासा देगा, सुकून देगा, और अंत में जाकर इस ओवर में रन आए हैं 11। 19वें ओवर में 11 रन आने के बाद रन संख्या बनी है 112। अभिषेक देसाई 6, मांगूरे 43 पर खेलते हुए। अब आखिरी ओवर है इस इनिंग्स का, तो क्या और एक 10-15 रन आएंगे? 125 130 का टारगेट क्या रखेंगे या फिर 120 के अंदर रोकेंगे? अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम ये 6 गेंदें बताएंगे हमें कि कितने का टारगेट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 150 तो होना चाहिए था। साईराज की बल्लेबाजी अगर हम देखेंगे तो ज़बरदस्त है बल्लेबाजी, लेकिन आज नरेंद्र मांगूरे, उसके बाद सुधनवा कुलकर्णी को छोड़कर बाकी के सब बल्लेबाजों ने बड़ी निराशाजनक बल्लेबाजी की है। गैर जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। परिणाम स्वरूप कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है अब तक से उनके टीम के खाते में। ओहो, ये गेंद थोड़ी सी रुक कर आई गेंद, बल्ला पहले चला नरेंद्र मांगूरे का और बुरी तरीके से बीट हुआ है, कोई रन नहीं बना। इस आखिरी ओवर में पहली गेंद डॉट करा रहे हैं दानिश हुनगेकर। 9 रन दे रहे थे पिछले ओवर में। ये एज लेकर गेंद हवा में, कौन लेगा? जी नहीं, मलतवाड़कर ने कैच को नहीं लिया। बहुत समय था उनके पास उस गेंद के नीचे आने का। कॉल भी दिया था कि ये मेरा कैच है, मैं लूंगा, लेकिन बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए। और गेंद जो बहुत हवाई यात्रा पर गई थी, वो जब नीचे आ रही थी तब थोड़ी सी हिलती डुलती आ रही थी, तो जज नहीं कर पाए मलतवाड़कर। लेकिन इस कैच को लेना चाहिए। आपके पास पूरा समय था, एक कप चाय पीकर भी वो कैच पकड़ा जा सकता था, इतना समय था आपके पास वो, और इतनी देर गेंद हवा में लटक कर गई, लेकिन ले नहीं पाए उस कैच को। ये बड़ा एज लिया है और ये गेंद विकेट कीपर वैष्णव के दस्तानों में, और अंततः अपनी एकाग्रता भंग होते हुए नरेंद्र मांगूरे की। तो कैच छोड़ तो जरूर रहे थे मलतवाड़कर, लेकिन
45 रन बनाकर एक अच्छी इनिंग्स मांगोरे की समाप्त हुई। नर्वस 40 के शिकार बने। ओ लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर एक रन बना फील्डर है उस इलाके में। गेंद को रोक तो रहे हैं जरूर, लेकिन एक ही रन बनने के बाद अनिकेत लोहार ने अपना खाता खोला। पारी की रन संख्या 115। एक 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। दानिश उनगेकर, ओ क्या करारा स्ट्रोक खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया। खतरे में जरूर हैं और थर्ड अंपायर के लिए निखिल मालगी इशारा कर रहे हैं। क्या वापस लौटे हैं अभिषेक देसाई या फिर नहीं लौटे हैं, ये हम देखेंगे रिप्ले के जरिए। आउट है अभिषेक देसाई, रन आउट। 9वां विकेट का पतन होता हुआ। एक रन बना, दूसरे की कोशिश कर रहे थे, स्ट्राइकर एंड पर आने की कोशिश कर रहे थे। वही सही सोच जरूर थी, लेकिन दूसरे रन के लिए कम पड़े उनके कदम और कहीं ना कहीं जाकर वो अब रन आउट होकर वापस लौटे हैं प्रॉब्लम में। तो 9वां विकेट का नुकसान होता हुआ 116। आखिरी जोड़ी मैदान पर। आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी मैदान पर। रवलू पाटिल एज लिया, कैच का मौका छोड़ दिया। वैष्णव संघमित्रा के ग्लव्स को लगकर गेंद गई है। रन आउट करने का एक अवसर है। जी हाँ, यहाँ पर रन आउट हुए, एक ही रन बना। दूसरे रन के लिए चल पड़े, लेकिन रन आउट करने का मौका नहीं छोड़ा। कैच जरूर छूटा था संघमित्रा के हाथों से विकेट के पीछे, लेकिन रन आउट करने का मौका नहीं गंवाया। तो 117 पर पारी समाप्त हुई है साईराज वॉरियर्स की 20 ओवर में। तो 118 रनों का लक्ष्य पार करना है अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम को इस पहले क्वालिफायर मैच में। लेकिन जहां तक हम साईराज की बात करें, उनके बैटिंग लाइनअप की बात करें, तो कम से कम 150 रन उनके जमा पूंजी में होने चाहिए थे। लेकिन आज शुरू से ही अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के गेंदबाजों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की और उसके चलते 118 पर उन्होंने रोका है साईराज वॉरियर्स की टीम को। तो क्या 119 रन बनाएंगी अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम, या फिर वो रन रोकने में कामयाब होंगे बॉलिंग और फील्डिंग के दमखम पर? साईराज वॉरियर्स की टीम यह आने वाला समय हमें बताएगा। फिलहाल तो 10 मिनट का विश्राम रहेगा और जैसे मैच जारी होगा 10 मिनट के बाद दोबारा हम आपके सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Let me stay with you. और साईराज वॉरियर्स के जो भी खिलाड़ी आकर यहाँ पर गेम का चयन करें। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द प्लेयर ऑफ साईराज वॉरियर्स प्लीज But tell me 'cause we still have time. चूज द बॉल मैच बॉल। I can't stop thinking about you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop thinking about you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. There's nobody else. Let me stay with you. Even asking you just one night. I don't know about you, your life. But tell me 'cause we still have time. I can't stop thinking about you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop thinking about you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in our eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. They are just chasing moderate score of 117, 118 being the target, and the two openers for Arjun Sports Blue Tigers are Parikshit Okkunda and Swapnil Elve. And the baller being for Sairaj, it is Narendra Mangore from the commentary box, and Narendra comes up with his bowling quotas first over and innings first over as well to the batsman Parikshit Okkund. Play says umpire and play begins. Again, flicked off his pads there towards square leg, wanting to. Two is the call. Yes, says Parikshit, and in comes the throw, and no, says umpire. Two good runs to begin with. So first runs on the board at the bat of Parikshit Okkunda's, and Okkunda opens his account with 2 runs and takes the scorecard ticking along to 2 for the first ball that is played. Well, that was a good fielding as well by the deep mid-wicket fielder, coming in quickly towards square leg and fielding. 2 runs for the taking. Good running by these two batsmen. Good cricket all around. Let me tell you that as we say that it's a reasonable moderate total. Again, watchfully played, getting the bat down quickly and respectfully playing it off the front foot there. Good bowling by Narendra, not giving any width and room to the batsman to swing his arms freely. Importantly, a dot ball. Narendra fielding in his own follow-through of his own bowling on the pitch area for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 2 runs. And played with soft hands, cut it down towards wide dish of third man. Kishan Megraj coming and just a spectator. The ball wins away. What a timed shot that was at the bat of Parikshit Okkund. With that, first boundary comes up in this innings, and also for Parikshit Okkund off his bat towards wide dish of third man. With that boundary, the scorecard ticks along to 6 runs, and all the 6 runs have been scored by Parikshit Okkund of the 3 deliveries that he has faced. Slightly width offered there, not really much of a width, but bowling on a back foot and cutting it beautifully towards wide dish of third man for a boundary. Again, a good shot there, straight to the fielder. Abhishek at shot at long on there, mid on, up in the circle, comes in quickly and fields. No run for the taking. A good dot ball for Narendra Mangore and the entire Sairaj. Every dot ball will be encouraged by the fielding side, and runs will be encouraged by Arjun Sports Shubli Tigers. Again, played off the front foot, straight to the fielder there in the point region. Good fielding, I would say. For another dot ball. With that dot ball, score still stands at 6 runs. Another delivery before the completion of this over, and Narendra Mangore keeping it very tight to the batsman after being hit for a boundary off the offside. Inside is there wanting a single, but no, says Swapnil Elve. Parikshit Okkund wanted a single there, sent back. Swapnil Elve not interested at all. Parikshit back in the crease quickly for a dot ball to finish this over. With that, it also finishes the overs. After the finishing of 1 over, the scorecard reads 6 runs, no wickets lost as yet. They require about 6 runs to win this match, 5.95 I would say. And they're going at 6 runs per over. 1 over have been bowled and the scorecard reading 6 on the board. No wickets lost as yet. All those 6 runs have been scored by Parikshit Okkund, and at the other end it was Swapnil Elve at the non-striker. And now Swapnil Elve will take the strike as the over being completed. Sairaj Warriors captain Abhishek Desai will have something to think about and
talk about interesting chair there. Spin been introduced. It would be Omkar Vernekar, I believe. Yes, Omkar Vernekar, a left-hander, tall man. He's done it before for his team. Can he do it again here? So quickly spin been introduced by the captain Abhishek of Sairaj to the batsman Swapnil Elve. Omkar Vernekar comes up with his bowling quotas. First over and innings second over to the batsman Swapnil Elve. Waited for the ball, watchfully and respectfully played there by Swapnil Elve to begin with a dot ball there. Good pitched up delivery, going to the front foot and defensive.